Well, it's the biggest talking point this evening. Despite his role in the Muzaffarnagar riots case in the Moradabad clashes, Centre has decided to give Z category security to BJP MLA Sangeet Som. The Ministry of Home Affairs claiming that it has intel inputs on threat to Sangeet Som's life. Interestingly, the UP government claims that there has been no recommendation sent from the state on additional security for Sangeet Som, and the UP government has no inputs whatsoever on a perceived threat. The question is, why is he getting Z cover then? Those people who are the victims of communal riots are still suffering and are still trying to surmount and overcome the pangs of insecurity, and those who are allegedly accused of involvement are being provided as Z+ security. What could be more ironical than this? The central government does not provide such security to anyone at its own whims and fancies. It is a decision which is taken after sufficient amount of evidence is piled upon the central government by the intelligence sources. And prior to giving a Z security on the insistence of the intelligence agencies, Sangeet Som was accorded Y category security by the Uttar Pradesh government on the order of High Court of Uttar Pradesh. And the BJP is giving a message that you commit crime, that you orchestrate riots, but we will support you, we will reward you. Now this security cover would be abused by Mr. Sangeet Som in threatening the state administration which has been acting against him. It would be used to threaten the common man and to also facilitate him to orchestrate more riots in the state of UP. Right accused, not convicted. And right accused, because if you falsely implicate someone, does that mean the person becomes a convict? And also that he has some intelligence input there. Yeah, I mean, what do you want? You want, okay. Very unfortunate that people like Sangeet Som are being provided Z category security, whereas people like, I've heard that Mohini Giri, who is the ex-chairperson of the Women's Commission in Delhi, broad daylight, has been beaten up. So therefore, when people are not safe, over 100,000 people have rendered homeless in Muzaffarnagar. Nothing is being done to redress their insecurity, about their problems of dignity and security. And political party members of the BJP are being provided Z category security is something which needs to be condemned. किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देना न देना सुरक्षा एजेंसियों और गुप्तचर एजेंसियों की सूचना के ऊपर आधारित होता है। यह एक पूर्णतः प्रोफेशनल प्रक्रिया है जिसके के बारे में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। संगीत सोम के बारे में जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रासुका लगा रखी थी जिसको वो सिद्ध नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वाई श्रेणी से अधिक की मेरी जानकारी है सुरक्षा दे रखी है कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे रही है, वो भी न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते हुए, तो फिर इस विषय में मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक नजरिया देखने की आवश्यकता है। संगीत सोम समाज के लिए खतरा है, उनको जेल में होना चाहिए। उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने के लिए भरपूर प्रयास किए। उन्होंने हिंदू मुसलमान और जातीय संघर्ष कराया, और लगातार मुजफ्फरनगर से लेकर और मुरादाबाद तक वो सबसे आगे रहते हैं। हमारा संविधान कहता है हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम सौहार्द में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका हाथ सबका विकास, और सबका साथ इसी तरह लिया उन्होंने कि एक अपराधी को जो आपराधिक घटनाओं में संलग्न है और एक दिन उनको सजा मिलनी चाहिए। कि मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण हुआ। रही सुरक्षा की बात, किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध होती है तो उसका एक प्रोसेस है, और जांच एजेंसियों की जांच के बाद, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद बाकायदा सुरक्षा मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे भी Y श्रेणी की सुरक्षा दी है, और माननीय हाई कोर्ट ने संगीत सोम को Y श्रेणी की सुरक्षा दे रखी थी।
अब केंद्र सरकार को या एजेंसियों के द्वारा रिपोर्ट गई होगी कि सुरक्षा को खतरा है, तो सुरक्षा बढ़ा दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, यही पता है जो यहाँ पे जो लोकल जो है उनकी आपको जानो खतरा बताइए, तो क्या मान रखते हो सरकार को? नहीं, ये तो सरकार का इशू है। लगातार हम लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के कारण हम लोगों का चेहरा टीवी के माध्यम से तमाम लोगों के सामने पेश किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार की गलती के कारण ये प्रचार करने का प्रयास किया गया कि इन लोगों के कारण दंगा हुआ, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी और तमाम चीज़ों से स्पष्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण ये दंगा हुआ है। तो ऐसे समय में जान का खतरा है, इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार भी मानती है, और जान का खतरा उत्तर प्रदेश सरकार ना मानती तो मुझे वायु श्रेणी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो यदि किसी को सुरक्षा कैटेगरी बढ़ाई गई है तो ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता महसूस सुरक्षा एजेंसियों को हुई हो, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसमें कौन सी बड़ी आयतोबा की बात है? आप भी महसूस कर रहे हैं? ये तो प्रदेश सरकार का काम है। प्रदेश सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराना है प्रदेश सरकार का काम है। यदि सरकार को लगता है कि जान का भय बना हुआ है तो सरकार को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, और वायु श्रेणी की सुरक्षा मुझे उपलब्ध करा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम लोगों को लगातार ये सुरक्षा का खतरा बना हुआ है, और तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट भी बाकायदा सरकार के पास जाती है कि लगातार हम लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को चिंतन करके वायु से सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सरकार निर्णय करती है। जिस व्यक्ति पर जितना खतरा होता है उस खतरे का आकलन करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, वो फिर सरकार उस पर निर्णय करती है। ये प्रक्रिया है, और कई कांग्रेस के नेताओं को भी सिक्योरिटी है और वो आकलन के आधार पर उनके पास है। सरकार जिस पर खतरा समझती है, अपने नागरिक की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। तो नागरिक की रक्षा के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, और अगर उन पर खतरे मंडराते रहते हैं तो उसका आकलन करके ही निर्णय करती है। यही तो ताज्जुब होता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से सांप्रदायिकता को कुचलने की बात करते हैं, सांप्रदायिकता समाप्त करने की बात होती है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है और सांप्रदायिकता के हीरो को सुरक्षा दी जाती है। ये तो कथनी और करनी का खुला अंतर दिखाई दे रहा है, और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सदैव कथनी और करनी में अंतर रहा है, और आज जनता उसको देख रही है।